नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो चलिए आधे घंटे तक हम लीक से हटकर देखेंगे कुछ दिलचस्प खबरें, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मिजोरम, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही हैं। The university has 39 academic departments spread under 10 schools and 41 affiliated UG colleges, nursing, medical and paramedical colleges and district institutes in education and training. I am happy to learn that Mizoram University has two sprawling campuses at Tanhiril and Pachunga. The university has a diverse student community comprising of students from all over the country and abroad. The university has made serious efforts in promoting academics that resulted in remarkable progress in the fields of science, arts, commerce, engineering and medical sciences. The university has gained the status of institution of immense and taken some path-breaking initiatives. The infrastructural development of Mizoram University within a very short span of time is indeed commendable. Mizoram University has been ranked as one of the top 100 universities by the National Institutional Ranking Framework, ranking from 2016 to 2022. It was ranked 78th in 2022 under the universities category among 900 universities. The university at the PG and UG level has fully adopted the choice-based credit systems that allow students from freedom of choices in their discipline. It is one of the few universities in the entire country which has implemented the National Education Policy 2020 from the academic years 2022-23. I am happy to know that the university campus is eco-friendly and solar power supply supports major energy needs in the campus. The campus also hosts diverse flora and fauna. I urge other educational institutions also to adopt eco-friendly measures and sensitize students towards the environment. The Mizoram University has 3 incubators for providing innovative and practical training to the students. Faculty members of Mizoram University have been awarded a large number of research projects and have various scientific accomplishment to their credit through research publications, books and patents. The university has signed MOUs with various universities and organizations at national and international level, such as University of Minnesota, USA, National Chung Hsing University, Taiwan, University of Malaysia, Indian Institute of Technology, Guwahati, Mizoram Youth Commission, Engineering Projects Limited and other important organizations for various academic and technological collaborations. This has set a new template to other higher education institutions to explore avenues for collaborating with national and international organizations and create new benchmarks of excellence in academic and technological spheres. Dear students and scholars, convocation is a historic occasion and marks the realization of dreams, innovation, commitment and hard work of the students and faculty members. For you, this is a moment of great satisfaction, joy and pride. It is important on this occasion to remember and recognize the efforts of those who have supported you throughout your journeys. Here I mean your family members who have made
sacrifices to enable you to reach your destination. Today, unlimited opportunities stretched out before you. There is no limit to your capabilities, so just realize your potential. You are the best judge of your own talent and potential. Explore the world and do new experiments. Here I would quote Robert Frost. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. I unquote. I further urge you all to take up the responsibility of educating the uneducated and spreading the light of knowledge. I am certain that you will continue to make your alma mater proud, as you have done today on this 70th convocation of Mizoram University. I am very happy to know that out of 6,826 students graduated in the academic session of 2021-22, more than 50% are girls. Also, out of 64 gold medals, 40 have been won the girl students. Among book prize winners also, 15 out of 25 are girls. I appreciate that number of females in higher education is rising, but it should rise at a higher rate. We should also ensure that participation of women in education should translate into increased participation in workforce also. When the women progress, the entire country progresses. I am happy to inaugurate and lay foundation stones of various projects of state government and central government today. The inauguration of 2 scheduled tribes girls hostels at Mizoram University and at Sairang today is a step towards empowerment of girl students by providing access to quality education and other facilities. I am happy to inaugurate the permanent campus of Indian Institute of Mass Communication, IJAL, which will be a boost to the media and mass communication studies in the entire Northeast. IIMC is an esteemed institution which provides a dynamic learning and working environment which nurture new ideas, creativity, research, and develops leaders and innovators in the domain of media and mass communication. The inauguration of new campus of Government IJAL College in Muaifui, IJAL will enhance quality of education and will provide better facilities for the students. I am sure that the new postgraduate academic block at Pachunga University College will play a significant role in enhancing educational infrastructure. I once again congratulate the graduating students and winners of gold medals and prizes and extend best wishes to the entire fraternity of Mizoram University. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे मिजोरम से, जहां पर मिजोरम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही थीं। और अब हम खबर हटकर में सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। गुजरात में सौर ऊर्जा से चलने वाले देश के पहले गांव मोढेरा में बदल गई तस्वीर, खत्म हुआ बिजली बिल का झंझट। अब बची हुई सौर ऊर्जा को लोगों से खरीद रही है बिजली कंपनी। फैशन की दुनिया में श्रीनगर की इंशा मीर लेकर आई कश्मीरी ब्रांड इको काश नाम के ऑर्गेनिक फैब्रिक यूनिट में तैयार परिधानों में दिखता है प्राकृतिक रंगों और कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट का बेजोड़ नमूना।
बेल्जियम के कस्टरली में कद्दू की नौका दौड़ का आयोजन। 65 टीमों ने पंपकिन बोट रेस में लिया हिस्सा। सिर्फ 3 दिन में ही बुक हो गए सारे टिकट। केरल के लोगों पर छाया फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार। कोझिकोड में नदी के बीचों बीच लगाया लियोनेल मेसी का 30 फीट ऊंचा कटआउट। और साउथ के सुपरस्टार अदिविशेष की बहुचर्चित फिल्म की दिखी पहली झलक। 2 दिसंबर को सिनेमाघरों में नजर आएगी तेलुगु फिल्म हिट द फर्स्ट केस की सीक्वल। तो ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। और बदलती हुई तस्वीर में आज हम आपको ले चलेंगे भारत के पहले ऐसे गांव में जो अब सिर्फ सौर ऊर्जा से ही चलता है। अभी पिछले ही महीने अक्टूबर में ही गुजरात के मोढेरा गांव को पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाला गांव घोषित किया गया है। हर घर की छत पर यहां सोलर पैनल भी लगे हैं। यहां अब बिजली बिल का झंझट खत्म हो गया है। और तो और जो लोग सौर ऊर्जा का बचत कर रहे हैं उन्हें प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली वितरण कंपनी खरीद रही है। यानी कि आमदनी का एक और जरिया इस गांव में पैदा हो गया है। केसाभाई प्रजापति बड़ी तसल्ली से इस चाक पर मिट्टी को मनचाहा आकार दे रहे हैं। गुजरात के मोढेरा गांव में रहने वाले केसाभाई अभी जितने बर्तन बनाते हैं कुछ महीने पहले तक आधा ही काम कर पाते थे। महीने में 1,500 रुपए तक का बिजली बिल ये भरने में सक्षम नहीं है, इसलिए हाथ से चाक घुमाकर बर्तन बनाने को मजबूर थे। पर अब उनकी ये मशीन सोलर पावर से चलती है। अक्टूबर महीने की शुरुआत में मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया गया। गांव में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट के साथ 1 किलोवाट के 1300 से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम घरों की छत पर लगाए गए हैं। टाइम ओछा बिगड़े ना तो हमारे ज्यादा माल होता है, थाक ओछा लगता है। प्लस जात मेहनत थी काम कर लेना पड़ता, चाकड़ा घुमाना पड़ता था। अभी घुमाना नहीं पड़ता, लाइट थी चल सकता है। तो लाइट थी हमारे 2-2.5 कलाक में 1.5 कलाक का दूसरा फायदा होता है, उतना मालपन बन जाता है। अगर किसी घर में न्यूनतम 1 किलोवाट बिजली का इस्तेमाल नहीं होता तो सरकार उनसे हर यूनिट बिजली के लिए 2.25 रुपए का भुगतान करके वो अतिरिक्त ऊर्जा खरीदती है। डोर टू डोर, हाउस टू हाउस हम उनको बिल पे करते हैं कि आपका लाइट बिल आया है, और हम कहते हैं कि आपका क्रेडिट है या आपको वो लाइट बिल के पैसे भरने हैं। वैसा हमारा काम है। इस पैसे का इस्तेमाल गांव के लोग दूसरे कामों में करने की योजना बना रहे हैं। अब यहाँ कुम्हार, दर्जी, किसान समेत हर पेशे से जुड़े लोगों का जीवन पहले से ज्यादा आसान हो गया है। पहले तो ये करना चाहिए कि सर मैं पैदल ही काम करती थी मशीन पे, तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। और अब सोलर लाइट आने से मैं मोटर लाई 2000 की, और मोटर पे काम करती तो मेरे 1-2 पीस ज़्यादा बन जाते हैं और पैसे ज़्यादा आते हैं, तो मेरे घर के खर्चे में मैं बच्चे को ठीक ठाक से पाल सकती हूँ। और रात को मैं पहले लाइट नहीं थी तो बिजली कम आने, बिल ज़्यादा आने की वो बिल ज़्यादा आता है ना, उसमें मैं खर्चा पूरा नहीं कर सकती, तो मैं रात में काम पे नहीं बैठती थी। और अब मैं रात को सोलर आने से रात को भी काम पर बैठती हूँ मशीन पे। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे सस्ती सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। हालांकि ये भी सच है कि दुनिया का तीसरा बड़ा कार्बन प्रदूषक देश भी भारत ही है, जिसने 2030 तक सौर और पवन से अपनी ऊर्जा की आधी मांगों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उम्मीद है कि एक दिन देश के सारे गांव मोढेरा गांव की तरह स्वच्छ सौर ऊर्जा से लैस हो जाएंगे। और अब जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती हुई ये खबर देखते हैं।
कश्मीर की दस्तकारी का कोई जवाब नहीं। इस दस्तकारी को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने और इससे जुड़े कारीगरों को कमाई के बेहतर अवसर देने के लिए श्रीनगर की इंशा मीर ने बड़ी पहल की है। उन्होंने इको काश नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया है जो न केवल टिकाऊ फैशन ब्रांड मार्केट में उतार रहा है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल परिधानों को भी बढ़ावा देता है। इंशा मीर श्रीनगर की रहने वाली हैं। पत्रकारिता में डिग्री हासिल की है, कई कंपनियों में नौकरी भी कर चुकी हैं। आखिरकार इन्होंने कश्मीर में कुछ अलग करने की ठानी और इको कैश के नाम से अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। इको कैश कश्मीर की पहली ऑर्गेनिक फैब्रिक क्लॉथिंग यूनिट है। उनके जरिए तैयार कपड़े ऑर्गेनिक फैब्रिक, नेचुरल डाई और कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट का बेजोड़ नमूना होते हैं। तो इको कैश में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारे जो फैब्रिक है जिस पे हम हैंडीक्राफ्ट्स कराते हैं वो सारा सस्टेनेबल है, ऑर्गेनिक बेस्ड है, 100% ऑर्गेनिक है। जिसमें हमारा ऑर्गेनिक कॉटन है, उसमें ऑर्गेनिक कॉर्डरॉय है, खादी हैंडलूम कॉटन आता है हमारे पास, हैंडलूम कॉटन है। उसके बाद हमारा जो सिल्क है उस वैरायटी में भी है हमारे पास कुछ, जैसे हमारे पास अहिंसा सिल्क आता है, टसर है, ब्लेंडेड फॉर्म्स आते हैं, खादी सिल्क कॉटन। और हमारे पास हेम्प का फैब्रिक है, हेम्प के फैब्रिक जो डिफरेंट पैटर्न्स, डिज़ाइंस, कलर्स और ब्लेंडेड फॉर्म्स में हमारे पास हेम्प आता है जिसको हम भांग भी बोलते हैं। इंशा मीर एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप में पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक प्रोग्राम के दौरान नेपोरा फेलोशिप के एक प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी हैं और ये ख्याल तभी उनके मन में आया। इसके जरिए इंशा एक टिकाऊ फैशन ब्रांड के साथ न केवल पर्यावरण के अनुकूल परिधानों को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि कश्मीर के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी पुनर्जीवित कर रही हैं। तो ये जो सारा फैब्रिक है इसके क्या बेनिफिट है, एक तो इट हैज़ अ बेनिफिट ऑन योर स्किन कि जब आप पहनते हैं इसका ब्रीदेबिलिटी आता है, आपको आपके स्किन पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। प्लस जो हमने डाइज इनकॉर्पोरेट की है वो 100% नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, नेचुरल इंग्रेडिएंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसका भी ना ही एनवायरनमेंट पे ना ही आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज को लेके हम चले हैं फिर रिवाइव करने जो हैंडीक्राफ्ट है कश्मीर का। इंशा मीर को कामयाबी भी मिल रही है। वो बड़ी संख्या में कश्मीरी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रही हैं। हमने जो एक मुहिम, जो हमारा विजन था, एक एम जो हम लेके चलेंगे, वो ये था कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनको एक फेयर प्राइस प्लेटफॉर्म हम दें। क्योंकि जो हमारा आर्ट है अभी उसका एक मेजर रीज़न यही है कि आर्टिजन को सही उसके काम का एक वो लेबर चार्ज उसको सही से नहीं मिलता है। तो वो प्रेफर करेगा कि मैं मजदूरी करूँ रादर देन कि ये आर्ट को, क्योंकि एक दिल ही लगाव होता है इस आर्ट के साथ। लेकिन जब आपका घर ही नहीं चल रहा है इस चीज़ से तो आप चाहेंगे कि वो ऐसा काम करे जिससे उनको कुछ मिले, रोजी रोटी उनकी चले, उनके बच्चों के खर्चात भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इस चीज़, यही हमारा आगे का, यही हमारा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आर्टिजन्स जुड़े। इंशा मीर एक ऐसे समाज से आती हैं जहां महिलाओं को आगे बढ़कर इस तरह के काम करने में बड़ी मुश्किल होती है। उनके सामने भी कई तरह की रुकावटें आईं, लेकिन इंशा अपने मजबूत इरादों से सब कुछ पार करते हुए उम्मीदों की किरण बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो निश्चित तौर पर इंशा जो है वो एक बिल्कुल पहचान बता रहे हैं। और अब हम सीधे चलते हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। This is the first time. This is also first time. Many firsts have happened during this period, and all put together, before going to his prepared speech, total coal dispatch in 2014, it was 572 million tons. This year we have achieved 817 million tons of this coal, and this current year, this is ongoing year, total all put together, I am very confident. Day before yesterday itself, myself, Amritlal ji and Nagaraju ji together, we reviewed in Kolkata. बहुत conservative भी बोलना है तो we are going to achieve all put together domestic coal production this year, inclusive of commercial, captive
abundant coal mines and Coal India put together, we are going to achieve 900 million tons of the coal. हम आपको इस बार तंग नहीं करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए और इसके लिए आपके हेल्प के लिए हम आते थे, वो तंग हम इस बार आपको नहीं करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं मैडम. विथ योर ब्लेसिंग दीज थिंग्स हैव हैपेंड. ड्यूरिंग 6th tranche, totally 12 states with a total PRC of 305 million ton इस 141 में हो रहा है, और मध्य प्रदेश 30 blocks and followed by Chhattisgarh 28, Odisha 27. When I speak of Odisha, I would like to share you one thing also. Wherever the mining is happening, Odisha, when we reformed, their total revenue generation from the mining sector was, after the reform auction regime, it was previously, it was in 2014, 13-14, it was 5,000 crores. When we brought auction regime, they were around 16-17, their revenue was around 24,000, 25,000. एंड जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमने जो रिफॉर्म 2020 और 2021 में किया, उसके बाद उड़ीसा का रेवेन्यू सिर्फ कोल और अदर माइनिंग से इट हैज बिकम 50,000 करोड़. एंड दिस इज, आई एम नॉट टेलिंग दैट, दिस वाज प्रेजेंटेड टू मी बाय द माइंस मिनिस्टर ऑफ द ओडिशा इन आवर माइंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव. सो दीज आर द थिंग्स आर हैपनिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी. I want to assure that industry that here the coal ministry, I have directed my official include the best possible coal blocks. हमने जो भी नहीं लेता है, कोल इंडिया नहीं लेता है, स्टेट नहीं लेता है, इसे नहीं रखा है. PSU को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्स हमने दिया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुआ था, माननीय वित्त मंत्री जी भी उसमें थे, और तब जो PSU यूज नहीं कर रहे, वो भी अच्छे से अच्छे ब्लॉक हम निकाल के वो भी हम ऑक्शन कर रहे हैं अभी. तो हाँ जी, 15 ब्लॉक्स हम अभी इसमें ऑक्शन कर रहे हैं. एज ऑलरेडी टोल्ड, अपफ्रंट अमाउंट वी हैव रिड्यूस्ड, एंड ओवरऑल अपफ्रंट हम वी हैव रिड्यूस्ड, एंड ऑल्सो exit route also we have made it very easy. And I don't want to go into the details. Mines with the ongoing exploration activities or overlapping with the active coal bed methane blocks or those under the litigation are excluded. ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे. केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी संबोधित कर रहे थे, और ये खासतौर पर जो वाणिज्यिक कोयला खदानों का आवंटन है, उसके लिए जो नीलामी की प्रक्रिया, अगले दौर की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी. तो इसी के साथ खबर हटकर में आज के लिए इतना ही. पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है. नमस्कार. और इस वक्त हम सीधे आपको लिए चलते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांगड़ा में संबोधित कर रहे हैं. सीधे लिए चलते हैं आपको कांगड़ा. बदला है क्या सैकड़ों में, हमारे पास वो फिगर नहीं है. यहां ऑक्सीजन प्लांट बन गए, हजारों की संख्या में यहां पर ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल तक पहुंच गए, सिलेंडर्स पहुंच गए, सारे देश भर में हुआ है. और बहनों भाइयों, जिस तरीके से हमारी सरकार ने कोरोना के संकट पर विजय प्राप्त करने में जो कार्रवाई की है, आपको जानकर यह प्रशंसा होगी कि दुनिया के माने जाने एक संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यदि दुनिया के किसी एक देश की प्रशंसा की है तो केवल भारत देश की प्रशंसा की है. बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा की. इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप सोचें. हालत कैसे थे जिस समय प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उस समय अर्थव्यवस्था के आकार, साइज ऑफ इकोनॉमी, इसके मामले में भारत 9वें-10वें स्थान पर आता है. 8 साल के अंदर वह करिश्मा हो गया, जिसमें 2 साल कोरोना का ही निकाल दीजिए तो 6 साल के अंदर ही वह करिश्मा हो गया. बहनों भाइयों, कि हमारा देश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो 9वें-10वें स्थान पर आता था,
आज वह 5वें स्थान पर पहुंच गया है, दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। और मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है, 8 से लेकर 10 वर्षों के अंदर हमारा यह भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और यही सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा बहनों भाइयों, यह भी संभावना हो सकती है, वो ये कह सकता है कि हम कुछ जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन किसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अमृतकाल समाप्त होते होते यानी 2047 या आजादी हासिल किए हुए 100 साल पूरे होंगे, कहीं ऐसा न हो जाए कि दुनिया अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंच गया। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, आलू की कीमत बढ़ रही, प्याज की कीमत बढ़ गई। बहनों भाइयों, कोरोना में कौन सा दुनिया का देश ऐसा है जो कि प्रभावित ना हुआ? अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, जाकर कोई देखे वहां पर। अमेरिका में महंगाई की हालत क्या है? 12% से ऊपर है, लेकिन हम लोगों ने 7-7.5% मैक्सिमम, इससे महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। और जिस तरीके से महंगाई पर भी काबू पाने में हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की है बहनों भाइयों, उसके साथ साथ अन्य भी जितने भी काम किए हैं, उसको देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। पढ़ा है कि नहीं अखबारों में? रूस के भी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। और बहनों भाइयों, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं, भारत के नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं, तो हर भारतवासी का सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की हनक बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बनी है, यह हनक सारी दुनिया में भारत की बनी है। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के सिलसिले में वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।